एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अवर वीडियो नंबर 34। हमने अब तक 330 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सब लोगों ने उसे देख लिया होगा। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ you have any queries regarding CL Vadua series, please comment it and I'll try to answer each one of you. So without a further ado, let's begin with the video. So our first question is the use of fast acting relays and circuit breaker for clearing a sudden short circuit on a transmission link between a generator and receiving end bus improves the transient stability of the machine because options are short circuit current becomes zero, post fault transfer impedance attains a higher value than that of during the fault, ordinate of the post fault power angle characteristic is higher than that of during fault characteristic, voltage behind the transient reactance increases to a higher value. So what we have been given in this question, that there is a short circuit fault on transmission line. ठीक है. So whenever there is short circuit fault, so the usage of fast acting relays and circuit breaker come into existence. ठीक है, बिकॉज ये सब प्रोटेक्टिव सिस्टम्स होते हैं. सो प्रोटेक्शन के लिए हम रिलेज और सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं. सो द यूज ऑफ फास्ट एक्टिंग रिले फॉर क्लियरिंग अ सडन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये कहाँ प्लेस किया गया है? बिटवीन द जनरेटर एंड रिसीविंग एंड बस. सो ये क्यों किया जाता है, दैट वी नीड टू नो. So whenever the protection system come into existence, it improves the transient stability of the machine. कैसे transient stability improve करता है? As you all know that the characteristic of power and load angle, I'll show that to you. See, this is the characteristic of power and this is the load angle del value. So आप देख सकते हो that the maximum value is at A. सो ये जो ऊपर का रेड वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिप्रेजेंट करता है बिफोर फॉल्ट, बिफोर ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट. जो सेकेंड वाला येलो वाला आप देख सकते हो, इट इज आफ्टर फॉल्ट, आफ्टर फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक. एंड दिस वन ग्रीन वन, इट इज ड्यूरिंग फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट. सो जब फॉल्ट का ऑकरेंस नहीं हुआ तो आप देख सकते हो दैट इट अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू. पावर का कैसा वैल्यू है? पावर का मैक्सिमम वैल्यू है. बट ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन जो ऑर्डिनेट होता है, दैट मीन्स वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा पावर का, वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो ऑर्डिनेट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन. बट जैसे ही फॉल्ट रिमूव हो गया, आफ्टर फॉल्ट कंडीशन में आप देख सकते हो दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर, देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट. ठीक है, सो ऑर्डिनेट क्या होता है? जो भी वैल्यूज वाई एक्सिस पे होते हैं उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है, और जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे होते हैं उसे एब्सिसा कहा जाता है. ठीक है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है. सो आफ्टर फॉल्ट कंडीशन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द पावर. सो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हम जो प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं whenever there is occurrence of short circuit fault, so we have to make use of fast acting relay and circuit breaker between the generator and receiving end bus, which improves the transient stability of the machine because जो ordinate होता है, ordinate of post fault मतलब after fault. So ordinate of the post fault power angle characteristic is higher. Yes, it is higher than during fault. This is during fault. As you can see, this is higher by that much value. So the answer for this given question is option number C. So option number C is only correct answer for this. So now moving towards next question. So our next question is, consider the following statements. The transient stability of the power system under unbalanced fault condition can be effectively improved by, we have been given certain statements. First one we have here is excitation control. Second one is phase shifting transformer. Then we have
single pole switching of circuit breaker, and last one is increasing the turbine input. And these are the statements जो हमें वन बाय वन डिस्कस करना है, एंड आउट ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट विच आर करेक्ट वन. ठीक है. सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है पावर सिस्टम का अंडर अनबैलेंस्ड फॉल्ट कंडीशन, कैसा है, अनबैलेंस्ड फॉल्ट कंडीशन है. अनबैलेंस्ड मतलब देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट. एक तो बैलेंस फॉल्ट होता है, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड फॉल्ट होता है. सो अनबैलेंस्ड फॉल्ट का मतलब होता है दैट इफ देयर इज ट्रांसमिशन लाइन, एंड ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास अनबैलेंस कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड. बट बैलेंस कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड एंड ट्रिपल लाइन. ये ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट्स होते हैं. बट हियर वी हैव टू डिस्कस फॉर विच इक्विपमेंट, वी हैव नॉट बिन गिवन कि कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए. सो ओवरऑल अनबैलेंस फॉल्ट कंडीशन को हम माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है पावर सिस्टम का, दैट मीन्स पावर सिस्टम में सारे के सारे इक्विपमेंट्स आते हैं. सो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम अंडर अनबैलेंस्ड फॉल्ट कंडीशन कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव्ड बाय, जैसे कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैसे हम इम्प्रूव करते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी हैव टू मेक यूज ऑफ सिंगल पोल स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, जब हम सिंगल पोल स्विचिंग करेंगे सर्किट ब्रेकर का, एट दैट पॉइंट ओनली वी कैन बी एबल टू improve the transient stability of power system. And also along with that, if we increase the turbine input, अगर टर्बाइन का इनपुट हमने इंक्रीज कर दिया, देन ऑल्सो वी कैन बी एबल टू इंक्रीज द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द non-uniform distribution of voltage across the unit in a string suspension type insulator is due to dash. So options are unequal self capacitance of the units, non-uniform distance of separation of the unit from the tower body, the existence of stray capacitance between the metallic junction of the units and tower body, non-uniform distance between the cross arm and the units. So इसमें से जो correct answer है that I am going to tell you, but before that we have to go certain information. So this information is regarding the string efficiency, but string efficiency के साथ साथ जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसका भी information यहाँ प्रोवाइड किया गया. As you can see this is tower. ठीक है, ये हमारा टावर है और टावर से ही कनेक्टेड we have string. String is nothing but the number of discs which combine together to form a string. So यहाँ आप देख सकते हो डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 एंड डिस्क नंबर 3. सो ये जो तीनों भी डिस्क है इनके बीच में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क इज गोइंग टू बी डिफरेंट. क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड. सो आइडेंटिकल वोल्टेज होना चाहिए बिकॉज डिस्क आइडेंटिकल है ना. अगर डिस्क आइडेंटिकल है तो वोल्टेज भी आइडेंटिकल होना चाहिए, बट हमें आइडेंटिकल वोल्टेज नहीं मिलता है. क्यों? बिकॉज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस. कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है कैपेसिटेंस? टावर बॉडी और ग्राउंड के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है. ठीक है. सो एज यू कैन रीड दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या दिया गया है? द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द वेरियस डिस्क ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर हैविंग आइडेंटिकल डिस्क is different due to shunt capacitance to ground. So there is existence of capacitance between the metallic junction. That means जो हमारा एक एक डिस्क होता है, ठीक है, डिस्क होता है. सो डिस्क और टावर बॉडी के बीच में there is existence of stray capacitance. So because of that only there is non-uniform distribution of
voltage across the string of suspension type insulator. So if I show you one diagram, this is nothing but tower, ये tower है, and this is disc, and between the metallic junction of unit and tower there is existence of stray capacitance. ठीक है, यहाँ stray capacitance का existence हो रहा है. So because of existence of these stray capacitance there is non-uniform voltage distribution. So यहाँ voltage different मिलेगा, यहाँ voltage different मिलेगा across the unit in the strings of suspension type insulator. क्यों होता है? Because there is the existence of stray capacitance. So जो correct answer है for this given question is option number C. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards next question. So the question is, whenever the conductors are dead-ended or there is a change in the direction of transmission line, the insulator used are of dash. So what we have been given in this question, that whenever the conductors are dead-ended and also there is change in the transmission line, अगर transmission line के direction में कोई changes हो रहा है, so हम कौन से type का insulator use करेंगे, that we need to know in this question. ठीक है. So there are 4 different types of insulator जो कि हमें options में दिए गए हैं. First one is pin type insulator, second one is suspension type insulator, third one is strain type insulator and fourth one is shackle type insulator. ठीक है. So ये सारे के सारे insulators के types होते हैं. Now we have to discuss each one of them. So first one we have here is pin type insulator. So जो pin type insulator होता है, it is this one. So pin type insulator आप देख सकते हो, ये हम यूज करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप टू 33 kV. 33 kV से ज्यादा अगर हमने यूज किया देन इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल. ठीक है. सो इट इज शेल टाइप कंस्ट्रक्शन. ये शेल जैसा देख सकते हो ना आप, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल. सो इट हैज शेल टाइप कंस्ट्रक्शन. सो जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज पे. So these are the information regarding pin type. Now next one we have here is suspension type insulator. As you can see, this long string is nothing but suspension type insulator. So यहाँ जो एक एक डिस्क होता है वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं और each disc is designed to withstand the operating voltage of 11 kV. हर एक डिस्क डिजाइन किया जाता है 11 kV के लिए और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है स्ट्रिंग का हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ डिस्क. ठीक है. अगर हमने 6 डिस्क को यूज कर दिया दैट मीन्स ईच डिस्क कंसिस्ट ऑफ 11 kV. सो 11 kV के अगर 6 डिस्क हमने स्ट्रिंग्स में अटैच कर दिए देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज. 6 डिस्क है, ईच डिस्क कंसिस्ट ऑफ 11 kV ऑपरेटिंग वोल्टेज. सो 66 टोटल हमें मिल जाएगा. टोटल जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द स्ट्रिंग इट इज गोइंग टू बी 66 kV. सो ये हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉर अबाउट 66 kV. ठीक है. एंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिस्क, अगर कोई भी डिस्क खराब हो जाए देन वी कैन रिप्लेस दैट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर डिस्क. ठीक है. अगर कोई डिस्क खराब हो जाए उसे हम निकाल देंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे न्यू डिस्क से और जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर था वो अच्छे से वर्क कर लेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज स्ट्रेन टाइप. सो स्ट्रिंग इज कनेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल बट डिस्क्स आर कनेक्टेड इन वर्टिकल. सो स्ट्रिंग कैसा होता है, यहाँ आप देख सकते हो सस्पेंशन टाइप में वर्टिकल में दिया गया है. स्ट्रिंग कैसा है, इट इज इन वर्टिकल. बट स्ट्रेन टाइप में क्या होता है, इट इज हॉरिजॉन्टल. स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होता है बट जो डिस्क होते हैं वो हमारे वर्टिकल में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो कैन बी यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम एट एनी वोल्टेज. ठीक है. इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ डेड एंड. हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रांसमिशन सिस्टम के रिगार्डिंग कि डेड एंड में या फिर रोड क्रॉसिंग दिया गया था क्या क्वेश्चन में, विल सी लेटर, बट डेड एंड दिया गया था. ठीक है. So it is used for the purpose of dead end
road crossing, angle tower, river crossing, railway crossing. For same operating voltage, the string has got an extra disc. सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में अगर 66 केवी के लिए हमने 6 डिस्क को डिजाइन कर दिया, देन इन केस ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर अगर 66 केवी चाहिए, देन वी नीड टू प्लेस वन मोर डिस्क कंपेयर टू सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. तो यहाँ टोटल ऑफ 7 डिस्क हमें यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द 66 केवी वोल्टेज. ठीक है. नाउ लास्ट वन वी हैव हियर इज शैकल टाइप. सो शैकल टाइप इट इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर डेड एंड आया या फिर रोड क्रॉसिंग या फिर एंगल टावर, देन वी कैन मेक यूज ऑफ शैकल टाइप. ठीक है. स्ट्रेन टाइप और शैकल टाइप ये दोनों का पर्पस सिमिलर होता है, बट स्ट्रेन टाइप इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम वेयर एज शैकल टाइप यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है. आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेड एंड आ गया एंड इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, देन विच इंसुलेटर वी हैव टू मेक यूज ऑफ. ठीक है. ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हमें देखना है. सो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इट इज नथिंग बट स्ट्रेन टाइप. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए पूछा जाए, देन इट इज गोइंग टू बी शैकल टाइप इंसुलेटर. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो आई होप आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. In the case of suspension type insulator, the string efficiency can be improved by using a longer cross arm, using a guard ring, grading the insulator disc, reducing the cross arm length. ठीक है. सो जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. हमने अभी इंसुलेटर देखा था. कितने टाइप्स थे? 4 डिफरेंट टाइप्स थे. पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर एंड शैकल टाइप इंसुलेटर. सो हमें इस क्वेश्चन में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में पूछा गया है. सो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट कैसे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी उसका इम्प्रूव करेंगे? बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म. सो लॉन्गर क्रॉस आर्म क्या होता है? दैट सी दिस इज द क्रॉस आर्म. ये क्रॉस आर्म होता है. अगर हमारा कंडक्टर यहाँ है, ठीक है, इफ वी हैव अ कंडक्टर हियर, सो इसके ऊपर तो इंसुलेटर्स आएंगे. ठीक है. अगर इंसुलेटर आ जाएगा, देन देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर. देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर बिटवीन द यूनिट ऑफ इंसुलेटर एंड tower body. If I increase the length of cross arms, ठीक है, this is our tower, और ये जो cross arm है, this one, अगर मैंने इसका length increase कर दिया, then what is going to happen? There is hardly existence of capacitance between the units of string and tower body. So hardly capacitance का existence हो जाएगा. ठीक है. सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है. यूजिंग गार्ड रिंग. सो गार्ड रिंग भी एक मेथड होता है जिससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो गार्ड रिंग क्या होता है? गार्ड रिंग हम क्यों यूज करते हैं? गार्ड रिंग हम यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस. सो जो हमारा डिस्क होता है उसके बीच में और जो हमारा अर्थ होता है उसके बीच में जो कैपेसिटेंस का प्रेजेंस होता है, उस फैक्टर को अगर न्यूट्रलाइज करना है, देन वी कैन मेक यूज ऑफ गार्ड रिंग. सो जो सेकेंड ऑप्शन है, दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट हो जाता है. थर्ड स्टेटमेंट है विच इज नथिंग बट ग्रेडिंग द इंसुलेटर डिस्क. आपको पता है कि सारे के सारे डिस्क कैसे होते हैं? सारे के सारे डिस्क तो आइडेंटिकल होते हैं, बट ग्रेडिंग में क्या होता है? ग्रेडिंग में हम नंबर ऑफ डिस्क जो कनेक्टेड होने वाले हैं उससे हम डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन. वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइक्वल होने वाला है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस, बट अगर हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल कराना है, देन
वी नीड टू मेक यूज ऑफ ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ताकि डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ डिस्क हम यूज कर सके और हमें इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, रिड्यूसिंग द क्रॉस आर्म लेंथ। अभी हमने देखा था कि अगर हमने इंक्रीज कर दिया क्रॉस आर्म के लेंथ को, देन द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज गोइंग टू इम्प्रूव, बट यहाँ गलत दिया गया है, सो फोर्थ इज रॉन्ग। सो जो करेक्ट आंसर है इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Now moving towards our next question. In a power system, each bus or node is associated with four quantities, namely real power, reactive power, bus voltage magnitude, and phase angle of the bus voltage. For load flow solution, among these four, the number of quantities to be specified is dash. So हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है that whenever we are dealing with load flow solution, so there will be four different quantities. कौन कौन से होते हैं जो कि हमें स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं। सो इसमें से दो नोन क्वांटिटीज होते हैं और दो अननोन क्वांटिटीज होते हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन से टाइप का वो बस है। ठीक है, अगर लोड बस होगा देन जो नोन क्वांटिटीज होते हैं वो पी क्यू होते हैं, एंड जो अननोन क्वांटिटीज होते हैं वो मॉड वी एंड डेल होते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर लोड बस। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, दैट मीन्स जनरेटर बस, वोल्टेज कंट्रोल बस, स्लैंग बस। ठीक है, अगर जनरेटर बस होगा देन पी एंड वी ये नोन क्वांटिटीज होते हैं, ये स्पेसिफाइड क्वांटिटीज होते हैं फॉर जनरेटर बस। अगर लोड बस रहा देन इट इज गोइंग टू बी पी क्यू। अगर स्लैंग बस रहा दैट मीन्स रेफरेंस बस, सो जो स्पेसिफाइड क्वांटिटीज होता है इट इज गोइंग टू बी वी एंड डेल। सो इट इज फॉर रेफरेंस बस। ठीक है, सो दो क्वांटिटीज नोन होते हैं और दो क्वांटिटीज अननोन होते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So list 1 में हमें types of relays दिया गया है। कौन कौन से types दिए गए हैं? We have been given 4 different types, और जो list 2 में दिया गया है इनका purpose दिया गया है कि कौन से protection के लिए which type of relays use किया जाता है। ठीक है, so सबसे पहले we have here Buchholz relay। सो जो बुकॉल्स रिले होता है हम इसे ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर है फॉर लिस्ट 1 में जो ए है इट इज सेकेंड। ठीक है, बुकॉल्स रिले हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर। कहाँ होता है, प्लेसमेंट का होता है बुकॉल्स रिले का, इट इज बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, कोई भी इंटरनल फॉल्ट ऑकर हो गया ट्रांसफॉर्मर में then Buchholz relay will come into existence and it will protect transformer। ठीक है, second one is translay relay। so ये जो translay relay होता है ये यूज किया जाता है for the protection of feeder। feeder के protection के लिए हम translay relay का यूज करते हैं। next one is negative sequence relay। so negative sequence जो relay होता है इसे हम यूज करते हैं in order to protect generator। ठीक है, जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेगेटिव सीक्वेंस रिले मतलब व्हेनेवर देयर इज ऑकरेंस ऑफ अनबैलेंस फॉल्ट। सो अनबैलेंस फॉल्ट के कंडीशन में क्या आता है, नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो जनरेटर में, उस रीजन के वजह से नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज किया जाता है इन जनरेटर। एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। सो जो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होता है वो यूज किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ओवरहेड लाइन। सो डायरेक्शनल क्यों दिया गया है, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट, अगर ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, सो हियर वी हैव जनरेटर साइड एंड हियर वी हैव लोड साइड। अगर फॉल्ट यहाँ ऑकर हुआ, जनरेटर साइड से तो पावर जा रहा है। ठीक है, जनरेटर साइड से पावर जाएगा and it is going to go towards load, but whenever there is occurrence of fault के occur होने की वजह से क्या होगा,
कि जो लोड है, लोड से भी पावर फ्लो होगा रिवर्स डायरेक्शन में। सो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो, इसलिए डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का यूज किया जाता है। क्यों ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा? बिकॉज दिस फॉल्ट पॉइंट इज गोइंग टू ऑफर लो रेजिस्टेंस पाथ। सो अगर लो रेजिस्टेंस पाथ है, देन देयर इज गोइंग टू बी द रिवर्सल ऑफ पावर एज वेल। ठीक है, सो रिवर्सल ऑफ पावर ना हो, इसलिए डायरेक्शनल ओवर करंट रिले यूज किया जाता है इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। सो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए कि कौन से टाइप ऑफ रिले के लिए कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया जाता है। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज 2, 1, 3, 4. इट इज एन ऑप्शन नंबर बी. So option number B is only correct answer for this. Now moving towards next question. Next question is a line trap in carrier current relaying tuned to carrier frequency represents dash. So options are high impedance to carrier frequency but low impedance to power frequency. Low impedance to both carrier and power frequency. High impedance to both carrier and power frequency. And last one we have here is low impedance to carrier frequency but high impedance to power frequency. So question में हमें क्या पूछा गया है? that जो लाइन ट्रैप होता है इन कैरियर करंट रिलेइंग, वो ट्यून किया जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ. ठीक है, प्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ इम्पिडेंस. हमें इम्पिडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करना है. सो एज यू ऑल नो कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है उसका रेंज कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इट ऑफर्स हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो कैरियर फ्रीक्वेंसी has high range of frequency. High range of frequency. So जो high range होता है it is going to be above 100 kilohertz. ठीक है, and also we have here is power frequency. So जो power frequency होता है इसका range कितना होता है power frequency का? It is nothing but 50 हर्ट्ज से लेके तो समथिंग 300 हर्ट्ज तक होता है. इट इज पावर फ्रीक्वेंसी. सो अगर हमें इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है, देन हाउ वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट इम्पिडेंस? सो एज यू ऑल नो कि x क्या होता है? x इज इक्वल्स टू ओमेगा एल. ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई एफ एल. ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस. ठीक है, सो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा देन वी आर गोइंग टू गेट मोर रिएक्टेंस वैल्यू. अगर मोर रिएक्टेंस वैल्यू है देन वी आर गोइंग टू गेट हाई इम्पिडेंस वैल्यू. सो इम्पिडेंस भी हाई हो जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लेस है देन वी आर गोइंग टू गेट लेस वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस. अगर रिएक्टेंस का लेस वैल्यू होगा देन वी आर गोइंग टू गेट लेस इम्पिडेंस वैल्यू. ठीक है, सो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए दैट मीन्स वहाँ हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होंगे. फॉर हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू गेट हाई इम्पिडेंस वैल्यू. बट इन केस ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी का रेंज कम होता है. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू गेट लेस इम्पिडेंस वैल्यू. सो लो इम्पिडेंस कौन से केस में होता है? पावर फ्रीक्वेंसी के केस में, और हाई इम्पिडेंस कैरियर फ्रीक्वेंसी के केस में. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द बेसिक सर्किट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन इज शोन इन द फिगर. To improve the through fault stability, a stabilizing resistor is connected between the points. So options are RP in series, PS in series, PT in series and PQ in parallel. ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें दो डिफरेंट आंसर मिले हैं. ठीक है, जो EAC का बुक है, EAC के बुक में इसका आंसर C दिया गया है, बट जो CL वाधवा का सॉल्यूशन है, CL वाधवा के सॉल्यूशन में हमें A दिया गया है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू CL वाधवा
it is option number A, but according to ESE solution it is option number C. So आप एक बार check कीजिए. So you have to check and see which one is correct for this. ठीक है. So our last question is, one circuit transformer is mounted over a 3-phase 3-core cable with its sheet and armor removed from the portion covered by CT. An ammeter placed in the CT secondary would measure dash. So options are the positive sequence current, the negative sequence current, the zero sequence current and 3 times the zero sequence. ठीक है. सो इसमें हमें क्या पूछा गया है, दैट देयर इज वन करंट ट्रांसफॉर्मर और उसे माउंट किया गया है ओवर 3-phase 3-core केबल. व्हेनेवर देयर इज 3 कोर्स, सो नंबर ऑफ कोर्स कितने दिए गए हैं, देयर इज 3 कोर्स, दैट मीन्स इनडायरेक्टली इट इज अ 3-phase. अगर नंबर ऑफ कोर्स 2 दिए गए देन इट इज गोइंग टू बी 2-phase सिस्टम. ठीक है. सो यहाँ 3-phase दिया गया है, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ 3-core केबल विथ इट्स शीट एंड आर्मर. शीट और आर्मर दोनों को भी रिमूव कर दिया है फ्रॉम द पोजीशन कवर्ड बाय सीटी. सो जब सीटी के सेकेंडरी में हम एमीटर को प्लेस करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट. बट कौन से करंट का वैल्यू हमें मिलता है, इट इज नथिंग बट फॉल्ट करंट का वैल्यू हमें मिलता है. ठीक है. सो फॉल्ट करंट क्या होता है, फॉल्ट करंट इज नथिंग बट 3 times of zero sequence current. So whenever we are doing this kind of adjustment, whenever we are connecting ammeter to the secondary of CTs, then we are going to get the value of fault current. ठीक है, which is nothing but 3 times the zero sequence current. So जो correct answer है for this given question is option number D. So option number D is only correct answer for this. सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो देन यू कैन कॉमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल. सो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड देयर इज़ वन टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आवर चैनल, सो यू कैन ज्वाइन दैट फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइज.